आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे HP टैट जुलाई 2024 में मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन। एज वी नो कि इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि डिवाइड फर्दर हुए होते हैं सेक्शंस में। साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से एंड 30 क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे जनरल अवेयरनेस से एंड 60 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं। दैट मीन्स कि बॉटनी एंड जूलॉजी के रहेंगे इन केस ऑफ मेडिकल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट सेक्शन दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग से रिलेटेड जो है वो कौन सा किसने कॉन्सेप्ट दिया था? दैट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी, वोल्फगैंग कोहलर, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मीन्स आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। Next question is according to the classical conditioning principle, what is the term for the learned ability to distinguish between a continuous stimulus and other irrelevant stimuli? So that is known as the option number A, discrimination. Next question is a student study hard to avoid failing a test. This is an example of negative reinforcement. Option number B. Next question is once a problem is identified, the researcher proceed by developing a tentative answer of the problem is called option number C, hypothesis. अगला क्वेश्चन है the School of Psychology, whose goal was to identify the basic element of experience, is called option number D, that is structuralism. Next question है behaviorist rejected introspection because it it was too subjective. Option D is the correct answer. Next है who devised the concept of इंटेलिजेंट क्विसेंट, IQ किसने डेवलप किया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विलियम स्टर्न। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पिगिट द फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट अपीयर्स बिटवीन द एज ऑफ कब? 11 टू 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is a researcher want to investigate the effects of new teaching method on student performance. Which research method would be the most suitable? तो correct option है option number C, that is the experimental method. अगला question है what is the purpose of control group in an experiment? So that is to receive the experimental to ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ऑप्शन नंबर डी, मीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन एंड प्रोसेसिंग a limited amount of information from the sensory environment is known as attention. Option D is correct answer. Next is which type of memory involves motor skills and habits? Option C, that is procedural memory. अगला क्वेश्चन है a rat learned to press a lever in order to receive food. This is an example of operant conditioning. अगला क्वेश्चन है in classical conditioning the neutral stimulus becomes a conditioned stimulus through option number D, association with unconditioned stimulus. Next is which theory suggests that forgetting occurs because memory traces fades over time? That is the trace decay theory. Next question is what is the process of reducing the occurrence of a behavior by presenting a
Perceived stimulus. So that is the option number B, that is punishment. Next is which psychologist is known for his research on the effect of observational learning and aggression in children? That is Albert Bandura. Next is according to operant conditioning principle, which of the following schedule of reinforcement typically produce the highest rate of responding? So that is option number B, variable ratio. Who coined the term serial position effect? Option A, Hermann Ebbinghaus. Next is who among the following is the famous psycholinguistic? That is option D, Noam Chomsky. Self actualization was proposed by option number B, Abraham Maslow. The word psychology was first introduced by, that was Rudolf Gockel. Next is among the following who introduced the concept of stages of moral development? So he was Lawrence Kohlberg. Right. Next is which type of thinking involve approaching a problem with a single correct solution? Option number A, that is convergent thinking. अगला क्वेश्चन है which type of memory is involved in remembering specific this life events and personal experiences? So that is option number C, episodic memory. अगला क्वेश्चन है टेंडेंसी टू रिमेंबर द बिगिनिंग एंड एंडिंग आइटम्स ऑफ अ टेस्ट better than the items in the middle is known as option number C, serial position effect. Next is the laws of learning are given by option D, Thorndike. अगला है according to the Kohlberg, at which level of moral development do individuals make decisions based on internalized ethical principles? So that is option C, post conventional level. Right. So ये आपके जो हैं क्वेश्चंस थे related to the psychology. Right. So next आपका जो क्वेश्चन है that is a general awareness and the environmental studies. सो इसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? सो दैट वाज Ryotwari, option A. Next is which national movement went on simultaneously with Khilafat movement? So that is non-cooperation movement. Next is who has been made the chairman of One Nation One Election High Level Committee? So that was the Shri Ramnath Kovind. ठीक है, इनको बनाया गया था. नेक्स्ट इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? बहुत रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज श्री अरविंद पेंगारिया. अगला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है दैट वाज ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी. अगला क्वेश्चन है गोची फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इट इज रिलेटेड टू लाहौल स्पीति. अगला है river से related question, that is Asikni. The river mentioned in Rig Veda is called in present time as Chenab. ठीक है ना, अब उसे क्या कहते हैं? Chenab. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेम ऑफ फेमस हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा? तो उसका जो ये काफी फेमस चल रहा है एंड इसको जो नेम दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हारमोनी ऑफ पाइन. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू pedagogical and curricular structure in school education as investigated by National Education Policy 2020? So it is 5 plus 3 plus 3 plus 4. ठीक है. Next is which of the following ocean current is a cold current? That is Labrador current. अगला है एंशियंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे कंट्री? इट वाज इन इराक.
अगला है व्हाट इज रैम, दैट इज इंस्टॉल्ड इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स कॉल्ड। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एंड रोम जो आते हैं, ठीक है, रोम इज रीड ओनली मेमोरी और यहाँ पे जो है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं एंड इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज बिगेस्ट सिंगल कैंटिलीवर ब्रिज Bakshal is constructed in which district? So it was constructed in Bilaspur. Who gave the title the Pahadi Gandhi to Baba Kanshiram? So it was option C, Jawaharlal Nehru. What is estimated growth rate of the economy of Himachal Pradesh for 2023 and 4? It was 7.1%. Himachal's largest solar power project with 32 megawatt is being installed at which of the following place? That is the Pekubela जो कि उन्ना में आता है। नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये पता है हमें कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है अफ्रीका में, पर अफ्रीका के जो है कॉन्टिनेंट जो अफ्रीकन है उसके कौन से पार्ट पे है, नदरन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, सो दैट इज वाज द सॉरी दैट इज द पार्क स्ट्रेट। हु कंपोज द तमिल एपिक सिला पादिकाराम, so it was composed by Elango. Ibn Battuta the traveler came from which country to India? तो जो इबन बतूता था वो मोरक्को से था। अगला है which scheme is decided to start in Himachal Pradesh in budget for year 2024 and 25 for better coordination between school and society। तो कौन सी स्कीम जो है वो बजट में बताई गई है फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी? सो दैट वाज ऑप्शन सी, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड इन हिमाचल प्रदेश? सो इट वाज बैंड इन 2022। ऑप्शन सी, सीरखड is tributary of which of the following river? So it is the tributary of Satluj। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र ऑफ इंडिया एज वेल एज हिमाचल प्रदेश? तो पहले जो थे परमवीर चक्र विजेता, सो दैट इज मिस मेजर सोमनाथ शर्मा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है रिप्लेस करके नीति आयोग में चेंज कर दिया है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है दैट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एज रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में क्या है, सबसे पहले सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच हाउस कैन अ मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड? सो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल? सो दैट इज द ऑप्शन ए, जैनिक सिनर। अगला क्वेश्चन है विच रॉकेट वाज यूज्ड टू कैरी आदित्य L1 सैटेलाइट टू स्टडी द सन? सो ये कौन सा था, PSLV C57। ये आपके दो सेक्शन जो है कंप्लीट हो गए, साइकोलॉजी एंड जो जनरल अवेयरनेस है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड सेक्शन है दैट इज द बायोलॉजी। ठीक है ना, बायोलॉजी में आपका बॉटनी एंड जूलॉजी के जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे। सो चलिए डिस्कस करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक इज IUCN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है और सेकंड मेल गैमेट जो है आपका अलग से जो फ्यूजन होता है, सो दैट इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट है इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी
took place as methyl isocyanate reacted with water. नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स हैं, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं कॉलम ए में, कॉलम बी से जो मैच करना था। तो देखिए, सबसे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन में सबसे पहले जो सबसे इजी आपको लग रहा है उससे मैच करना स्टार्ट कीजिए। नाउ सी, ये शायद सबको पता होगा कि डीडीटी जो है वो बायोमैग्निफिकेशन होता है, डीडीटी जब एक्यूमुलेट करता है। तो सी का वन ऑप्शन, ठीक है ना, यहीं से ही पता लग जाएगा कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है जी, ठीक है, एंड दिस इज यूट्रिफिकेशन, एन, ठीक है ना। तो यूट्रिफिकेशन में जो है आपके नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दो ऑप्शंस भी अगर आपको मिल गए तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन द 4 ऑप्शंस आर गिवन, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बताना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए, अगेन जो सबसे इजीएस्ट है पहले उसको मैच कीजिए। बाइल सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है, आपका लिवर से। सी का आ जाएगा 1, एंड रिलीज ऑफ एसिड, एसिड आपको मिलेगा स्टमक में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्रोथ हार्मोन निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। देखिए, 4 जो किंगडम्स आते हैं, किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ही आते हैं बट दे आर प्रोकैरियोटिक। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एक ही फाइलम है, दैट इज द प्रोटिस्टा, सॉरी एक ही किंगडम है, दैट इज द प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सो दैट इज द काला आजार। टाइफाइड, एंथ्रेक्स दोनों आपकी जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है, बट जो काला आजार है दैट इज दिस काला आजार जो है दैट इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवेनाई, जो कि एक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन सी, एस कोहन एंड बॉयर, इन्होंने डिस्कवर की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज डिस्कवर्ड इन 1972। Next is xerophyte plant in which the stem is modified into flat green succulent structure is the opuntia। ठीक है ना, opuntia आपने अने सब में देखा होगा। इसमें क्या है कि जो स्टेम है दैट इज ऑल्सो मॉडिफाइड टू द, वो भी ग्रीन होता है। ठीक है ना, so that is the opuntia। नेक्स्ट है, environment protection act was passed in ऑप्शन ए 1986। अगला है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd ऑफ May। 73 है, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो दैट इज द बैक्टीरिया। देखिए, सपोज हम कॉमन कोल्ड की अगर बात करें, ठीक है ना, अगर हम कॉमन कोल्ड में देखें तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि कोल्ड जो है दैट इज़ नॉट ऑलवेज वायरल। कुछ एक कई बार हमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर आता है। ठीक है ना, तो अगर हम फीवर की बात करें तो फीवर आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कोई बार कोई वायरल इन्फेक्शन भी होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो हमेशा जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, तो जब एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं तो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर कर सकती हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियल का अगर हम इन्फेक्शन की बात करें सो दैट कैन ओनली बी क्योर्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। अगर वो इन्फेक्शन वायरल है तो आप एंटीबायोटिक खाओ या ना खाओ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट। बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चन है, दैट इज एथिलीन। जितने भी हार्मोन है इनमें से यही एक गैशियस हार्मोन रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेल एंड
फीमेल क्रोमोसोम इन बर्ड्स, दैट इज ZW एंड ZZ। ठीक है ना, यहाँ पे जो फीमेल है दैट इज हेटेरोमॉर्फिक और मेल जो है होमोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट इज TT। ठीक है ना, हेट्रोजाइक कंडीशन को अगर आप रिसेसिव कंडीशन से क्रॉस कर रहे हैं, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि बिटवीन F1 हाइब्रिड जो है उसका क्रॉस विद द F1 हाइब्रिड का क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, सो दैट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज TCA cycle is named after Hans and Crab, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। हमारी जो बकल कैविटी है वहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो ये सबसे पहले कहाँ पे होता है, स्टमक में, बिकॉज स्टमक हैज पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर। विटामिन डी जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ह्यूमन लिवर में होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है देयर चेंजेस टू सीड। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एंड फेदर स्टार ऑल आर इंक्लूडेड इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स इन लेग्स, इट इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करो या आप सपोज बहुत ज़्यादा अगर वॉक कर लिया है तब भी आपको लेग जो पेन होता है ना, दैट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप वार्म वाटर में अपने फीट जो है थोड़ा टाइम सोक करके रखेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये लैक्टिक एसिड जो है रिमूव होगा, इसीलिए उसके बाद जो है पेन में भी थोड़ा रिलीफ मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA एंड IB वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस। देखिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप IA है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होगा कि ये अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आपका जो जीनोटाइप है दैट कैन बी दिस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड ग्रुप A और B है वो इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, सो दे आर शोइंग द कोडोमिनेंस। अगला क्वेश्चन है वाइडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, सो दैट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज वी नो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जनरली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, राइट। तो यहाँ पे लिपिड से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन बी, दैट आर द प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। बाकी जो तीन है वो डबल मेम्ब्रेन इन्वेल्व स्ट्रक्चर है। राइबोसोम इज द स्ट्रक्चर दैट डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो ग्रीन मफलर को याद रखना है, एयर पोल्यूशन से कंफ्यूज नहीं करना है। ये किसके लिए यूज करते हैं ग्रीन मफलर, नॉइस के लिए, नॉइस रिडक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। सो जो टाइफॉइड है दैट इज नॉट द वाटर बॉर्न डिजीज, दैट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न्ड विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, और ये कहाँ पे चलता है ऑर्निथिन साइकिल, इन लिवर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन लिवर। Next is the site of glycolysis is cytoplasm, option number A. Next question is during hibernation. Hibernation is winter sleep. दो terms आती हैं hibernation and estivation. Hibernation is winter sleep, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जो
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स तो नहीं रहता है, तो वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं वार्म प्लेसेस पे। ऐसे ही एस्टिवेशन होता है समर स्लीप, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए वो क्या करते हैं, ठंडे जगहों पे चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज apparatus used to measure blood pressure is sphygmomanometer. अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन इफ अ प्रेगनेंसी occurs. So that is the HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये फर्टिलाइजेशन के 8th डे पे सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज़ करते हैं कि अगर यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर फीमेल इज प्रेग्नेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन इन नेचर, सो दैट इज सिल्क एंड वूल, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो वी ऑल नो डीएनए में क्या रहते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स आपके दो होते हैं, पिरिमिडीन नॉर्मली 3 होते हैं, बट डीएनए या आरएनए में दो, 3 में से 2 ही होंगे। तो यूरिसिल आपका जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और डीएनए में यूरिसिल की जगह क्या रहता है, थायमिन। अगला क्वेश्चन है कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन द नॉर्मल सेल्स बिकॉज दीज आर अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। उसमें रैपिड डिवीजन होगा तो जब कैंसर सेल्स को किल करते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी से या और भी रेडिएशन से या किसी भी टेक्निक से, जब उनको डैमेज करते हैं रेडिएशन से, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज भी उन्हीं को ही होगा ना जिसमें सबसे ज़्यादा आपका डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, अगला है द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू जनरेट द होल प्लांट, दैट इज टोटिपोटेंसी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सिर्फ एक जो जाइगोट है, दैट इज द ओनली सेल विच इज टोटीपोटेंट। जैसे जैसे आपका जाइगोट से फर्दर जो है डिफरेंशिएशन होता रहता है, तो टोटीपोटेंसी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, जैसे हम जाइगोट आपका टोटीपोटेंट हो गया, ठीक है, फिर फर्दर डेवलप करते करते ब्लास्टोसिस्ट में जब बाहर जो है ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है और अंदर इनर सेल मास रह जाता है, तो क्या होगा, उसकी पोटेंसी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। अब इनर वाले सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे कि वो अ, कुछ और बनाएंगे, बाहर वाले सेल हो जाएंगे डिफरेंशिएट कुछ और बनाने के लिए। ठीक है ना, जैसे ट्रोफोब्लास्ट फिर आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए स्पेसिफाई हो जाती है। तो इसी तरह जैसे जैसे आगे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे, पोटेंसी जो है सेल्स की वो कम होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, सो दैट इज विलियम हार्वे हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है एक्स क्रोमोसोम्स आर लिटिल लॉन्गर देन द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 cycle of photosynthesis is PEP, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। ठीक है, तो CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है C4 साइकिल में, दैट इज फॉस्फो इनोल पायरुवेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं वैसे उनमें दोनों रहता है, ठीक है, एस्ट्रोजन भी रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन भी रहेगा। ठीक है ना, जो कंबाइंड ओरल पिल्स आती हैं, राइट। सो बट मेनली जो है वो प्रोजेस्टेरॉन तो रहता ही रहता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को ही टिक करोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ भी जो है पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट इज इन एन एडल्ट ह्यूमन हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन 1 ईयर। तो 3 होती हैं, स्टेपस, मेलस और इनकस। ठीक है ना,
सो ये 3 बोन्स जो हैं प्रेजेंट रहती हैं ह्यूमन ईयर में। 3 1 ईयर में होंगी एंड 3 जो है वो दूसरे ईयर में, तो टोटल 6 होती हैं। ईच ईयर पूछा है तो फिर 3 होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज respiratory pigment, so that is the hemoglobin which is known as the respiratory pigment. And next is valve present between the left atrium and left ventricle is known as mitral वॉल, ठीक है। इसको जो है वैसे हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो वो कस्प रहते हैं ना, टीथ शेप स्ट्रक्चर जो है वो दो रहते हैं, ठीक है। इसको हम बाइकस्पिड भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका जो है वो मीट्रल वॉल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्रोफेजी इज एसोसिएटेड विद रैबिट। अपने ही फिशेस को वो खुद से ही खा लेते हैं, दैट इज कॉप्रोफेजी, दैट इज सीन इन द रैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड लिविंग द लंग्स इज रिचर इन ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है लंग्स में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का, लंग एल्वियोलाई में फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑक्सीजन अंदर जाती है, वहां पे डिफ्यूज होती है, तो लंग्स जो हैं दे आर रिचर इन ऑक्सीजन। द ब्लड लिविंग द लंग इज रिचर इन ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। विटामिन बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सेल कोडेड प्रोटीन formed in response to infection with most animal virus called, these are the interferons, ठीक है। ये सेल प्रोड्यूस करते हैं पास वाले सेल्स को बताने के लिए कि हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगला है पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले एंड मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ऑल द अबव। नेक्स्ट इज एलिमेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड आर, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सल्फर और फास्फोरस में से आपको कंफ्यूजन होगा, बट न्यूक्लिक एसिड में एज वी नो दैट कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और नाइट्रोजन का मेन इम्पोर्टेंट रोल रहेगा नाइट्रोजनस बेसिस में, प्यूरिन और pyrimidines में, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन का हाइड्रोजन एंड कार्बन का भी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स अ सेल अंडरगो टू फॉर्म 256 सेल, ठीक है। आपको पता है माइटोटिक डिवीजन में एक से दो बनते हैं, तो कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए, 8। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पार्ट ए एंड बी। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो स्पर्म का हेड है दैट हैज द एंजाइम, इसमें हाइयालुरोनिडेज एंड प्रोटीएजेस प्रेजेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल का मेथड है आईयूडी। आईयूडी मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें कॉपर टी, लिपिज लूप और ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट जो है वो दैट इज द सेक्शन नंबर 4, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट m is 53 in its oxide having molecular formula M2O3. Its atomic mass is about 27. अगला क्वेश्चन है which of the following occupy maximum volume at STP, so that is 11 gram of nitrous oxide. Next है the ratio of E by M, that is specific charge for a cathode ray is constant. अगला क्वेश्चन है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज 3s. Next is stainless steel is a very important useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with nickel and chromium. Right. Next question है which of the following metals are obtained by electrolysis of their chloride salts in molten state? So these are the option A and B, sodium and calcium. अगला क्वेश्चन है polywool and polycot are fabrics made up by mixing two types of threads. These are respectively कौन कौन से हैं,
पॉलीएस्टर प्लस वूल एंड पॉलीएस्टर प्लस कॉटन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, so that is handles and cookware. Next is what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of vas in a test tube. First and three are the correct option. Temperature of solution increases and temperature of solution remains same. Next है which of the following oxide is an example of amphoteric oxide, that is Al2O3. Which of the following are not purely ionic compounds? So HCl and CCl4 are not purely the ionic compounds. Next is generally carbonate ores of metals are converted into metal oxide from through calcination. अगला है which of the following is not a constituent of petroleum? So that is option number D, coke. Next is which part of candle flame is hottest part and has the highest temperature? So that is outermost. Blue zone जो है that has the highest temperature. अगला क्वेश्चन है water placed in a beaker over flame becomes uniformly hot due to which process? So that is convection. अगला क्वेश्चन है when we add 5 drops of China rose indicator to lemon juice, the color of lemon juice will become the dark pink. Option D is correct answer. Next is which of the following molecule has atomicity of 4? So that is ammonia. Next is which of the following statement is not true about the atoms? That is atoms are not able to exist independently. अगला है mass of one atom of oxygen is 16 grams. Which of the following contains maximum number of molecules? So that is 1 gram of hydrogen. अगला क्वेश्चन है total number of nodes present in a subshell are given by the formula n minus 1. Option A is the correct answer. Next is which element in the periodic table has highest value of negative electron gain enthalpy? So that is the chlorine. Option number B. In which of the following sp3 hybridization is not present? So in CO2, carbon dioxide, sp3 hybridization is not present. Next is IUPAC name of organic compound oxalic acid is ethanodioic acid. Option B. Next is all matters is made up of very small particles which cannot be further broken down. These particles are called atoms. This statement is one of the assumption of Dalton's atomic theory. Option C. Next है when heat is applied to a solid substance at its melting point, average kinetic energy of particles increases. Scattering of light will occur when a beam of light passes through which of the following? Blood. Next is the masses of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution are respectively 62.5 gram and 187.5 gram. Option B is correct. Next is the maximum number of unpaired electron present in 4f subshell is 7. Next is the formula of quicklime and limestone are respectively quicklime का है CaO and limestone is CaCO3. ठीक है. So these are the five these are the 150 questions जो कि हमने डिस्कस किए टैट जुलाई 2024 मेडिकल सब्जेक्ट में जो आए थे. आई होप यू लाइक द वीडियो.